Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 21st of July 2023. From today's newspaper, we will be discussing about the wrestler's case and the rule of law associated with it. After this, we'll be talking about India's data protection law, then the Delimitation Commission, and at last, the Kutch Bridge attack and why this bridge is significant. So, let us begin with today's discussion. Before we begin the discussion, I would like to request all of you to please subscribe our channel IAS Cafe and like and share. Now, coming back to the topic about the wrestler's case, the editorial wants to say that in India, the rule of law has weakened. हमारी कंट्री के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है और उसके एग्जाम्पल जो है राइटर बोलना चाहता है यू कैन सी विद द रीसेंट रेस्टलेस प्रोटेस्ट. Okay, let's have a look on the wordings that there is a weakening of the rule of law in India, best exemplified by the impasse in the restless sexual harassment complaint and the feeble administrative, judicial, and political attempts to ensure the justice. बट ये रूल ऑफ लॉ क्या है? We are saying that rule of law is weakened. But what is this rule of law? See, the rule of law is a British concept. It was first of all propounded by A.V. Dicey. He was a British jurist and he said there are three elements of the rule of law. The first element he talked is about the absence of the arbitrary powers. Okay, the first element he talked was absence of the arbitrary powers. That means you cannot punish a person if he has not breached the law. अगर कोई पर्सन है उसने कोई कानून तोड़ा है तो आप उसको पनिश कर सकते हो वरना पनिश नहीं कर सकते. So here comes that the absence of the arbitrary powers. Now, the second element which comes over here is the equality before the law. Okay, the second thing is the equality before the law. And the third element is that is the rights of individuals are supreme than the constitution. But if we talk about in the India's context, okay, so there are only initial two elements which we had included in our constitution, that is the absence of the arbitrary powers and the equality before the law. This is not included in our constitution as इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम और वहां से राइट्स आ गए इंडिविजुअल की. ठीक है जी. नाउ यू नो दैट रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया? ब्रिटिश का कंसेप्ट है, एवी डाइसी ने लिखा है. ये हमारे दो एलिमेंट्स जो लिखे कहां पे? These are mentioned in Article 14 of the Indian Constitution as the Part 3 of the Indian Constitution, which talks about the fundamental rights of the citizens. Here, now failure of the rule of law पे आते हैं. Mainly दो काउंट. पहला तो ये कह रहा है that now we are having a deficit in the trust as it is a colonial model. colonial model कैसे है? अभी हमने देखा कि कंसेप्ट किसका? ब्रिटिशर्स का है, एवी डाइसी का है, जिसमें उन्होंने तीन एलिमेंट्स दिए हैं, है ना. और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अ फेथ ओरिएंटेड majoritarian reimagination of the laws that locate their essence in the divine properties. अब बैकग्राउंड को समझते हैं. तो कुछ रेस्लर्स हैं जिन्होंने बहुत पहले ये बोला था दैट हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमारे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, हमको एक एक को रूम में बुलाया जाता था, हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता था और इस बेसिस पे उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करी और वो कंप्लेंट जो है एफआईआर नहीं लिखी गई. उन्होंने दिल्ली का जो जंतर मंतर है तो वहां पे जनवरी के महीने के अंदर बहुत ही धरना प्रदर्शन किया लेकिन कोई कॉन्क्रीट जो आउटकम है वो नहीं निकला.
फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अप्रैल में फिर से जो है ये धरना देंगे। लेकिन अब इस बार क्या था, ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था पहले की कंपेयर। अब काफी लोगों का यहाँ पे सपोर्ट था। इवन हमारे कंट्री की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट ऑन this matter FIR should be taken as soon as possible under the relevant law. क्लियर? तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, तब दो एफआईआर दर्ज करी गई। पहली एफआईआर थी अंडर सेक्शन 354 ए डी और 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और दूसरा था आपके पास अंडर द पॉक्सो एक्ट, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। अब ये पॉक्सो एक्ट क्या होता है? ये आया था 2012 में इफेक्ट किया गया। ये एक्ट क्या कहता है कि कोई भी चिल्ड्रन जो कि माइनर हो, उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, पोर्नोग्राफी जैसी कोई हरकत हुई है, तो उसके साथ डील कौन करेगा? पॉक्सो एक्ट। तो इस केस में एक माइनर में इन्वॉल्व थी, तो एक एफआईआर जो है पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ पे दर्ज हुई। जब दोनों एफआईआर दर्ज हो गई, तब क्या होता है कि जो आपके पास आरोपित था, एलिजेड जो परपेट्रेटर था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और उनके जो फॉलोवर्स, देखो यहाँ पे जो एलिज परपेट्रेटर या आरोपी था वो एक पॉलिटिशियन है। तो ही along with his followers started a campaign to vilify the wrestlers following the growing public and even some political support. और इस कैंपेन में इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि उन्होंने रेसलर्स के लिए तो खिलाफ में बोला तो बोला, बट ये जो पॉक्सो एक्ट है उसके बेस को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना? तो जब इतना मुद्दा आगे बढ़ गया, तो ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को इतना टाइम क्यों लगा एफआईआर दर्ज करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में। जो पुलिस जो है, उनके पास काफी ऑब्लिगेशन है अंडर द लीगल, जिसके थ्रू वो आराम से इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, जैसे कि सेक्शन 156 है। सेक्शन 156 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या कहता है कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है, वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगर कोई कॉग्निजेबल केस है उनमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड, सेक्शन 166, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का केस आता है, उसमें अगर आप इंफॉर्मेशन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड नहीं करें, तो वो खुद एक ऑफेंस है। ये सब होने के बावजूद अगर आप ये रीजन दे रहे हो कि भाई ऊपर से हमारे पास ऑर्डर नहीं थी इसलिए हमने एफआईआर नहीं किया, तो ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है दिल्ली पुलिस की तरफ से। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया कि आप ललिता कुमारी केस को देखो, जहाँ पे एफआईआर रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बताया गया, ठीक है? तो मिस्टेक्स क्या है भाई दिल्ली पुलिस, दैट दिल्ली पुलिस हैज टेकन इट्स ओन टाइम इन इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम विद अ फोकस। दिल्ली पुलिस ने अपना खुद का अलग ही टाइम लिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उनका फोकस क्या था कि जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी क्रेडेंशियल्स देखा है, डॉक्यूमेंट्स देखा है, ना कि जो आरोपी थे उनको वहां जाना चाहिए था, जबकि जो कंप्लेंट कर रही है उनकी तरफ जा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, फिर भी आरोपित की अगर एक ही बार भी इंटरोगेशन नहीं हुई, ये तो हालत है यहाँ पे। तो दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ अ पुलिस सिलेक्टिविटी। तो रूल ऑफ लॉ का कोर्स क्वेश्चन अगर देखें, तो जो क्रेडिबिलिटी है, जो इंजॉरेबिलिटी है ऑफ आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसके स्टेटमेंट में ही आता है दैट इक्वालिटी प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय लीगल फिलोसफी। और अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात करते हैं, कंप्लेंट से एफआईआर के बारे में बात करते हैं, तो इक्वालिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, चाहे सामने पॉलिटिशियन हो या गरीब हो या कोई एक्टर हो, it should be free, fair, and impartial investigation. It appears that the legal course at the police level has been designed to be slow and selective and overly differential to the main accused person. तो जब इतने सारे मौके हैं पुलिस के पास, फिर भी वो नहीं कर रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को बचाने की कोशिश तो कर रही है। फिर यहाँ पे ललिता कुमारी केस हम देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एफआईआर है उसको मैंडेटरी आपको करना ही करना है, ये इस केस का आउटकम निकला था। That the journey of rule of law is expected to continue without impediment. That is why the bench said that Kumari case relied on the reason of keeping an efficient check on the police powers and having the measure of the judicial oversight of the magistrate. The idea being to obligate the jurisdiction magistrate to follow up on each of the FIR.
तो इस तरह के जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इंटरवेंशन होता है इन्वेस्टिगेशन में, इट मे अराइज फ्रॉम एन एप्लीकेशन बाय कंप्लेनेंट डायरेक्टली। देखो यहाँ पे इस केस के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से जो भी इंटरवेंशन हो रहा है जुडिशरी का, या तो जो कंप्लेंट कर रहा है वो खुद बोल सकता है कि जुडिशरी को आप इंटरफेयर करो अंडर सेक्शन 156 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या मैं रिट पिटीशन डालू। रिट पिटीशन क्या है? एक तरह से गार्जियन की तरह काम कर रही है, ठीक है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिट, राइट? सर्चोररी है आपके पास, कोवेरेंटो है, पढ़ा है ना रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 32, कि अगर आपके खिलाफ, अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। So in addition, the appellate court enjoy the powers to take the suo motu cognizance and call for an action, take a report or direct the lower court to monitor the investigation. सेम चीज साकरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2008 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल रखा है दैट मैजिस्ट्रेट विद इनहेरेंट पावर्स टू मॉनिटर एन इन्वेस्टिगेशन इन द इवेंट ऑफ अब्यूज ऑफ पावर्स। फेलियर ऑफ रूल ऑफ लॉ है, इट इज इन क्लियर एग्जाम्पल। नाउ आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। रेस्टलेस प्रोटेस्ट की स्टोरी ना जान के आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे इस पूरे मुद्दे में कि रूल ऑफ लॉ क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द डेटा प्रोटेक्शन बिल। हम सबको पता है कि 20 जुलाई 2023 यानी कि कल का जो दिन था, मॉनसून सेशन जो है पार्लियामेंट का स्टार्ट हो चुका है। उसमें बहुत सारी जो बिल है वो पेश हुए हैं, होने हैं और उन पर डिस्कशन होना है, और अगर सहमति मिल जाती है तो क्या होगा, उसका एक एक्ट बन जाएगा। कल जो पहला दिन था वो मोर एंड लेस मणिपुर वायलेंस पे गया है। बहुत ही शर्मनाक एक केस आया है मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड। पहली बात तो वायलेंस का कॉज क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो इस चैनल का सबसे पहला वीडियो देखिए, वो मणिपुर वायलेंस के ऊपर। एंड इट इज अ वेरी शेमफुल एक्ट जो अभी सामने आया है, दैट group of 200 or more people are forcing two women to have parade in a naked manner, and ultimately they gang raped both the girls in the field. इससे ज्यादा शर्मनाक हादसा I haven't heard yet. It is ushering as a part of the country. It is a complete shameful act. We all are responsible that how a man can dare to do such activities against a woman. Not about the Manipur. It's about उनका हिम्मत कैसे हुआ है कि किसी वुमेन के साथ तो ऐसा कर सके। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? क्या वुमेन अभी भी एक ऑब्जेक्शन की तरह देखी जाती है, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखी जाती है? क्यों वॉर में हमेशा वुमेन को बीच में लेके आ जाते हैं? अगर ये एथनिक क्लैश था तो व्हाई मेन आर रेपिंग द वुमेन ओवर देयर? यू शुड हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वॉर, जो होता है उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसमें वुमेन बीच में क्यों लेके आ रहे हो आप? वेरी वेरी हीनियस क्राइम। Now coming to the data protection bill, the government release, तो कल का जो पूरा डिस्कशन था वो मणिपुर वायलेंस पे गया है पार्लियामेंट में। आज और या फिर कल जो है आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये जो बिल है वो पेश होगा। ये बिल का ये तीसरा अटेम्प्ट है, पहले भी पेश हो चुका है, 2022 में भी इसका ये प्रस्तुत हो चुका है लेकिन पास नहीं हुआ था। लेकिन इस बार का जो डिस्कशन है वो मोर एंड लेस यही कहता है कि जो 2022 का जो बिल था सेम उसी तरह से उसको फिर से पेश किया जाएगा, कोई खास इसमें चेंजेस नहीं है। और अगर कोई खास चेंज नहीं है तो इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एरिया है जिसके बारे में राइटर बात करता है, ठीक है। पहला ये बोल रहा है कि ये जो बिल है सिर्फ पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ना कि नॉन पर्सनल डेटा को। और दूसरा, दैट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उसके पास लेस अथॉरिटी है। अब पहली बात तो पर्सनल डेटा और इसके मुद्दे को समझते हैं। पर्सनल डेटा मतलब मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा जॉब कहाँ है, मेरा ऑफिस कहाँ है, करेक्ट, मेरा हस्बैंड कौन है, मेरे पेरेंट्स कौन है, वेर आई एम वर्किंग, हाउ मच सैलरी आई एम गेटिंग, ये पर्सनल डेटा हो गया। तो इसका प्रोटेक्शन है इस बिल में, लेकिन नॉन पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब मैं ओला के से कैब बुक कर रही हूँ, रोज मंदिर जा रही हूँ शाम को 6 बजे, अगर मैं जोमेटो पे हर फ्राइडे को क्या कर रही हूँ, खाना ऑर्डर कर रही हूँ, एनी काइंड ऑफ दीज डाटा नॉन पर्सनल डेटा जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है। बट राइटर क्या कह रहा है
कि सर जी नॉन प्रोटेक्टेड जो डेटा होता है उससे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर कोई सिटीजन डेली शाम को 6 बजे अपने घर से कैब बुक कर रहा है मंदिर जाने के लिए, ठीक है, और वहां से आप सीधा सीधा एक डेटा के थ्रू पता लगा सकते हो कि उसका रिलीजन क्या है या फिर वो क्या करने वहां जा रहा है, आप ट्रैक कर सकते हो उसको कि 6 बजे करने क्या जा रहा है वहां पे। अगर मैं डेली अमेजन पे, ठीक है, अगर मैं अमेजन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली बेबी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रही हूँ तो यस, आप पता लगा सकते हो कहीं ना कहीं कि यस इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी दिस मंथ और द नेक्स्ट मंथ, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। तो राइटर वांट्स टू से दैट ये बहुत बड़ा लूप होल है कि कैफे को आप पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन जो नॉन पर्सनल डेटा है उससे अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह से बहुत आसानी से आप पर्सनल डेटा की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सेकेंड लूप होल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आपने बनाया है यहाँ पे, जिसके पास अथॉरिटी आप बोल रहे हो ये सब देखने के लिए, उनको तो कोई पावर दी नहीं है क्योंकि वो खुद से कोई एक्शन ले ही नहीं सकते सुमोटो। या तो पर्सन खुद जाके बोले कि भाई मेरा डेटा मिसयूज हुआ है, प्लीज वर्क ऑन इट। क्या ये पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? मुझे तो सालों तक पता ही नहीं चलेगा पहली बात तो किसी सिटीजन को कि मेरा डेटा मिसयूज भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अरे आप इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं पता लगा पाते हो कि आपका मिसयूज हो रहा है नहीं हो रहा, तो कहाँ इतने भारी डेटा पे आप जाओगे? सेकंड, या तो गवर्नमेंट बोले या सिटीजन बोले, और सरकार खुद मिसयूज कर सकती है, वो क्यों बोलेगी कि हाँ आपका डेटा मिसयूज हो रहा है? तो ये दो लूपहोल्स यहाँ पे इन्होंने बताया। सोल्यूशन ये कह रहे हैं कि आप पेनल्टी लगा सकते हो और फलाना फलाना, बट दो सॉल्यूशंस आर नॉट दैट मच यूजफुल। ओके, तो जब ये बिल आ जाएगा देखते हैं इस पर क्या डिस्कशन होता है, विल गो इन डिटेल ऑन दैट बिल एज वेल। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक व्हिच टॉक्स अबाउट द डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन के ऊपर हम लोग स्टोरी पे नहीं जाएंगे कि अखबार क्या कह रहा है, डीलिमिटेशन है क्या उसको हम समझ लेते हैं, हमारे काम की वही चीज है। सबसे पहले प्रोसेस को समझिए कि आपका आर्टिकल 82 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक सेंसस के बाद पार्लियामेंट सबसे पहले डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करता है। उसके बाद आर्टिकल 170 के तहत जो स्टेट्स है इंडिया में, उनकी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो डिवाइड हो जाती है इलेक्शंस के लिए। एक बार अगर एक्ट बन जाएगा तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाएगी। अब आते हैं हम डीलिमिटेशन कमीशन क्या है जी। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट डीलिमिटेशन कमीशन को। किसकी कोलैबोरेशन में भाई, इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन में। और कौन होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, रिस्पेक्टिव स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो। क्यों चाहिए डीलिमिटेशन कमीशन, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो हर एक पॉपुलेशन के सेगमेंट को, ज्योग्राफिकल एरिया में फेयर डिवीजन हो, वन वोट वन वैल्यू आए। अब आप डिलिमिटेशन की जो डेफिनेशन है उसको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, दैट इट लिटरली मींस द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट और द बाउंड्रीज of the territorial constituencies in the country to represent the changes in the population. It is to work without an executive influence. इस पे किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जब ये कोई डिसीजन सुना देती है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, आप इसको किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब ये एक्ट सबसे पहले बना 1952 में, उसके बाद 4 बार और आया है, 52, 63, 73 और 2002। अब कमिंग टू द लास्ट टॉपिक अबाउट द कर्च ब्रिज। ये इंटरेस्टिंग कहानी है बट छोटी कहानी है। यूक्रेन और रशिया का हो रहा है भाई वॉर बहुत टाइम से। अब यूक्रेन के कंट्री में पहले एक पेनिनसुला हुआ करता था जो था आपके पास क्रिमियन पेनिनसुला, जो रशिया ने हथिया लिया। अब जब रशिया ने हथिया लिया तो अब ये आ गया रशिया के अंडर में। लेकिन रशिया का जो मेन लैंड है और ये जो क्रिमिया है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो थी नहीं। हथियाने से क्या होता है भाई, आप जाओगे कैसे? तो पुतिन जी ने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया विच कनेक्ट द मेनलैंड रशिया फ्रॉम द क्रिमियन पेनिनसुला, और इस ब्रिज का नाम है आपके पास द कर्च ब्रिज। इस ब्रिज पे हो गया है अटैक। अब कर्च ब्रिज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये लोकेटेड है आपके पास कर्च स्टेट से। स्टेट क्या होता है, नैरो पैसेज, जो कि दो वाटर बॉडी या लैंड्स को कनेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट होता है जियोपॉलिटिकली, इसको ब्लॉक कर दोगे तो ट्रेड कैसे होगा, है ना।
तो सबसे पहले कहानी ना जान के आपका होमवर्क क्या, ब्लैक सी पता करके आओ, एजॉव सी पता करके आओ, कंट्रीज बॉर्डरिंग बोथ द कंट्री, एजॉव सी, ब्लैक सी, है ना, ये प्रीलिम्स में आपके काम आएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस ब्रिज इज सो इम्पोर्टेंट? देखो, अगर ये ब्रिज टूट गया तो ये जो एसेंशियल सप्लाई वहां से मिल रही थी, फ्यूल, फूड, गुड्स, ये सब क्या टूट जाएगा। प्लस रशियन फोर्सेस वहां पे ऑपरेट कर रही है, तो आप उनसे कनेक्ट कैसे करोगे? तो मेजरली यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो आपके पास इशू आ रहा है। अब आते हैं मेंस क्वेश्चन पे। मेंस क्वेश्चन पे आप लिखिए दैट critically analyze the impact of, ठीक है, the question is critically analyze the impact of Russia Ukraine war on the global economy. All right, so 250 words, 15 marks. Okay, that's it from today's newspaper. I'm so sorry I was not well. That is the reason videos late आ रहे थे, कभी अच्छे से नहीं आ रहे थे. But now you will get the videos on time. I'm feeling much better. और आपका जो ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट हुआ था जिसपे 2 लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, पहला और दूसरा जो कि क्लाइमेटोलॉजी की बेसिक्स पे वो हो चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए और आगे आने वाले लेक्चर्स जो है आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं. थैंक यू सो मच. Please be tuned, subscribe our channel, like and share @IS Cafe.